Hello students, let's discuss Rupert Brooke's poem The Soldier. You see, the poem Soldier is one of the most evocative and poignant poems and an example of the dangers of romanticizing World War process, comforting the survivors, but downplaying the grim reality. And these lines are used in military memorials today also. The Soldier was the last of 5 poems of Rupert Brooke's. These are the war sonnets, and this was the last one. And when The Soldier was written, the bodies of the servicemen were not regularly brought back to their homeland, but buried nearby where they had died. So in World War First, this produced vast graveyards of British soldiers in foreign lands. तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो फॉरेन लैंड्स में फॉरेन फील्ड्स में वो मरे तो वहीं पे उनको दफना दिया गया वहीं पे उनको दबा दिया गया and that particular moment, that particular situation allows Brooke to portray these graves as representing a piece of the world that will forever be England. है ना कि जहां पर इंग्लिश सोल्जर्स को क्योंकि वॉर के टाइम पे बहुत सारे इंग्लिश सोल्जर्स जो है फॉरेन फील्ड्स में ही मर गए थे तो उनकी बॉडीज को घर नहीं लाया गया उनको वहीं पे जहां पर वो मरे थे वहीं पे उनको दबा दिया गया तो पोएट जो है कि एक उस ओकेजन को उस सिचुएशन को एक ग्लोरीफाई कर रहा है वो उन सोल्जर्स को के ट्रिब्यूट में ही ये सोनेट जो है लिखा गया है कि भाई जोन से फील्ड में जोन सी जगह पे एक इंग्लिश सोल्जर अपने देश की को प्रोटेक्ट करते हुए अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करते हुए मर गया वो और वहीं पे उसको दबा दिया गया वही जगह उसकी क्या बन गई वो जगह इंग्लैंड का एक पार्ट बन गई चाहे वो वर्ल्ड का कोई भी पार्ट हो सो दिस पोएम इज डीपली patriotic and idealistic that expresses a soldier's love for his homeland. So in this case, homeland is what? England. So this poem shows a patriot's love for a soldier's love for his own country. So this is presented, this has been portrayed as a kind of nurturing paradise. So Brooke glorifies England during the First World War. He speaks in the guise of an English soldier. एक इंग्लिश सोल्जियर के रूप में एक इंग्लिश सोल्जियर के भेष में जो पोइट है वो इस पोएम में अपनी एक डिजायर एक्सप्रेस कर रहा है अपनी एक बात बता रहा है एज ही इज लिविंग होम टू गो टू वॉर है ना एक सोल्जियर जैसे वॉर पे जाने के लिए अपने घर से जा रहा है घर छोड़ के जा रहा है तो वो ऐसे बात करता है सो इन द फर्स्ट स्टैंजा ही टॉक्स अबाउट हाउ हिज ग्रेव विल बी इंग्लैंड हरसेल्फ दो ही स्टैंजाज हैं इस पोएम में तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पोइट क्या बता रहा है कि कैसे उसकी ग्रेव जो है वो अपने आप में इंग्लैंड का एक हिस्सा बन जाएगी and what it should remind listeners of England when they see the grave है ना सो फर्स्ट स्टैंजा अभी हम टेक्स्ट करेंगे तो आप देखोगे कि भाई पोएट क्या बात कर रहा है वो ये बता रहा है कि कैसे उसकी ग्रेव जो है वो इंग्लैंड का ही एक पार्ट बन जाएगी और कैसे जो इंग्लैंड के जो लोग हैं वो उस ग्रेव को देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे क्या सुनेंगे वो है ना इन द सेकेंड स्टैंजा actually this is a sonnet although it has been written in the pattern of patriarchal sonnet 8 lines जिसको octave कहते हैं वो एक ग्रुप बनता है नीचे वाली 6 lines वो दूसरा ग्रुप बनता है लेकिन इसमें जो थॉट प्रोसेस है वो उस तरीके से नहीं बताया गया इट इज जस्ट द ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड है ना बाय एन इंग्लिश सोल्जर So
In the second stanza, that is the sisted part, the poet talks about his this death. This death. Which death? That is his sacrifice for England as a redemption. है ना? कि डेथ के बाद जो पोएट है वो क्या बन जाएगा? एटर्नल का एक पार्ट बन जाएगा, एटर्नल माइंड की पल्स बन जाएगा. He concludes that only life will be the appropriate thing to give to great motherland in return for all the beautiful and great things she has given to him and made him what he is. So the soldier speaks of the poem, है ना, in this poem like this. So he seeks to find redemption through sacrifice in the name of country. Right? So that is the poet's desire. So let's see the text. So what the poet says: if I should die, think only this of me, that there is some corner of foreign fields that is forever England. So the soldier expresses his desire. He tells, I told you that as he leaves for war, as he leaves home for war, he is saying like this, कि if he will die, the people should think of him, कि there is some corner in the foreign field that is England forever. है ना, कि भाई अगर मैं मर जाऊं, क्योंकि वो युद्ध के लिए जा रहा है अपने घर को छोड़ के, तो वो लोगों को बता रहा है, अपने घर के लोगों को बता रहा है, या सोसाइटी में या कंट्री में इन जनरल अपना बात बता रहा है, कि वो कह रहा है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचना कि विदेश में कोई एक ऐसा कोना है जो हमेशा के लिए इंग्लैंड बन गया, है ना, क्योंकि वो अपने कंट्री इंग्लैंड के लिए सेक्रीफाइस उसने अपनी लाइफ की है, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करते हुए उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है, या अपने देश के लिए वो शहीद हुआ है. तो उस जगह पे जहां उसको दबाया गया वो जगह इंग्लैंड का एक हिस्सा कहलाएगी, क्योंकि देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड, क्योंकि वो जगह रिच हो जाएगी जहां पे उसको दबाया गया, क्योंकि उस जगह के अंदर, उस मिट्टी के अंदर और खूबसूरत मिट्टी छुपी हुई है. कौन सी? कंसील्ड का मतलब छुपी हुई. रिचर डस्ट किसकी हो गई? पोइट की हो गई, क्योंकि पोइट जो है, पोइट या सोल्जियर, है ना, उस सोल्जियर की हो गई जो सोल्जियर अपने देश के लिए शहीद हुआ. उस शहीद हुए उस सैनिक की जो मिट्टी है वो और ज्यादा कीमती है, वो और ज्यादा रिच है. तो उस ऑर्डिनरी अर्थ के अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मिट्टी है वो दबी हुई है, और वो मिट्टी किसकी है? वो इंग्लैंड की है. ए डस्ट, वो कौन सी डस्ट है? whom इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवेयर. वो डस्ट कौन सी है? जिसको इंग्लैंड ने ही पैदा किया, इंग्लैंड ने ही उसकी मिट्टी को एक शेप दी, उसको अवेयर किया. अवेयर किया मतलब जहाँ वो पला, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, जहाँ पे उसने ये सब सीखा, है ना, अच्छे विचार सीखे, अच्छी बातें सीखी, अच्छी एजुकेशन ली, है ना, गेव वन सर फ्लावर्स टू लव, ये अपना एक ट्रिब्यूट है उसका, अपने देश के लिए श्रद्धांजलि है, कि जिस देश के फूलों ने उसको प्यार करना सिखाया, है ना, जिसके रास्तों में वो घूमा, है ना, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, है ना, उसकी बॉडी जो इंग्लैंड की हवा में जिसने सांस ली, उसके शरीर में उसने मतलब एक जब जीवित था तो इंग्लैंड की एनवायरनमेंट में उसने सांस ली, वहां की रिवर्स ने उसको पानी दिया. ये तो एक पोएटिक लैंग्वेज है ना बेटा. whenever we have to translate English poem or anything, any part of literature, any genre of literature, whether it's a poem or drama or novel or whatever it is, when we have to translate it in Hindi, the whole of the spirit gets lost, है ना. But you see the channel has been entitled as literature simplified. literature simplified मतलब कि भी तुमको इंग्लिश में, तुम्हारे को मदर टंग में बात समझाई जाए,
ताकि तुमको समझ आ जाए। एंड बिकॉज वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो वी ट्राई टू कीप अप द कॉनोटेशंस। हम कोशिश करते हैं कि हिंदी में भी बात की जाए तो आपके साथ उस पोइट के जो भाव है वो आपको तक पहुंचाए जाएं, ताकि पोइट जिस भावना से लिख रहा है, जैसी फीलिंग्स लेके पोइट लिख रहा है, वो फीलिंग्स आप तक भी पहुंचे, है ना। अब अगर हम यूं कहें वास्ड बाय द रिवर्स, की नदियों ने नल के द्वारा नहाया गया, तो कोई मीनिंग नहीं बनता, सेंसलेस है बात, है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जहाँ की प्रकृति ने उसको सुकून दिया, चैन दिया, है ना, हिम्मत दी, हौसला दी, जहाँ पे उसने तरह तरह के एक्सपीरियंसेस गेन किए, है ना, जहाँ पर उसने इतना कुछ सीखा, ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम। देखो इन लाइंस की अब हिंदी ट्रांसलेट करें तो कोई सेंस नहीं बनती। कुल मिला के अब बात करें तो यहाँ पर इन लास्ट ये 3 लाइंस का मतलब देखो, ए डस्ट whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air, washed by the rivers, blessed by the sons of home. All that means कि the country which has given everything to him, है ना, it has given him good education, good ideas, good thoughts, है ना, or to say morality, nobility, humanity, religion, sensitivity, everything he has learned from his country, from his elders, from his family members, from his teachers, from his leaders, है ना? He is obliged, so he is obliged to his country in every sense of the term. तो उसने इस देश से ही सीखा अच्छे विचार, है ना, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, मानवतावादी विचार, है ना, धार्मिक विचार, सांस्कृतिक विचार, संस्कृति, सभ्यता, सब कुछ, सब अच्छी बातें उसने अपने उस देश से ही सीखी। तो हर तरह से वो अपने उस देश की मिट्टी का एहसानमंद है, जिसने उसे इस काबिल बनाया कि वो अपने देश की रक्षा के काम आ सके, है ना। मुझे लगता है शायद मैंने यही बात पोएट कह रहा है जो तुम्हें हमने अभी हिंदी वर्जन में मैंने बताई। And think this heart, all evil shall shed away, a pulse in the eternal mind. No less, give somewhere back the thoughts by England given, her sights and sounds and dreams as her day, and laughter learnt of friends and gentleness, in a heart set peace under an English heaven. And think, ये देखो अब यहाँ से नई लाइन्स आ गई ना, लास्ट 6 लाइन्स। तो इसमें अब क्या कह रहा है कि when he will die, है ना, इन 6 लाइन ये पोएम थोड़ी सी और अलग से लगती है। लास्ट 6 लाइन्स में वो क्या थॉट कन्वे करना चाह रहा है कि भाई उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई तो उसकी स्पिरिट कहाँ पहुंच गई, हेवन में चली गई। अब वो एटर्नल एयर का एक पल्स बन गई, एटर्नल वर्ल्ड की एक वो पार्ट बन गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उसका जो सेक्रीफाइस है अपने कंट्री के लिए, वो क्या हो गया, रिडेम्पशन हो गया, है ना। नाउ ही हैज बिकम अ पल्स इन द एटर्नल माइंड। अब एक वो प्योर स्पिरिट हो गई, है ना। तो अब उसमें क्या हो गया, दिस हार्ट ऑल इविल शेड अवे, तो सारी बुराइयां अगर कोई है भी सही तो वो उसके अंदर से खत्म हो गई। ए पल्स इन द एटर्नल माइंड, अब वो पल्स बन गई, पल्स मतलब धड़कन बन गई। यानी अब हम यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या कहेंगे कि वो एक एटर्नल स्पिरिट का पार्ट बन गया। नो लेस, give somewhere back the thoughts by England given. Now he is in a position, now he is a noble soul, he is a pure soul, he is able to give back the thoughts which England has given him, है ना। अब वो इंग्लैंड ने उसको जैसी परवरिश की, जो अच्छे थॉट्स दिए, जो विचार दिए, जो अभी मैं बता रही थी, जो आइडियल्स उसने सीखे, जो एजुकेशन ली, जो नॉलेज ली, जो नोबेलिटी, मोरालिटी, रिलीजन, कल्चर, इन सब से रिलेटेड जो कुछ भी उसने अच्छा सीखा जिंदगी में, वो सब अच्छे विचार पीछे रहने वाले लोगों को सिखाने की, बताने की, वो के लिए वो एक प्रेरणा बनने के काबिल हो गया। Her sights and sounds, dream happy as her day, and laughter learnt of friends and gentleness,
in hearts of at peace under an English heaven. तब ये सब बातें अपने मतलब लोगों में जो पीछे जो लोग रह गए उनको ये बताने के लिए, उसको उसको देख के उसके सेक्रीफाइस से लोगों को क्या लगता है कि भी हाँ क्या लगेगा कि भी इंग्लैंड जो है वो एक हेवन है ना। जब वहां पर उसने जो कुछ भी सीखा वहां की साइट से साउंड से, है ना, जो उसके अच्छे दिन थे, जो लाफ्टर सीखा, जो फ्रेंड से सीखा, जो जेंटलनेस सीखी, है ना, नोबिलिटी जो लोगों से सीखी, जो पीसफुलनेस सीखी, ये सब कुछ उसने कहाँ से सीखा? अपने कंट्री से सीखा। तो उसका कंट्री जो इंग्लैंड है वो क्या है? वो हेवन से कम नहीं है। मतलब क्योंकि अब वो एक स्पिरिट का पार्ट बन गया, पोएट आफ्टर डेथ, एटर्नल स्पिरिट की एक पल्स बन गया। तो अब उसमें सारे इविल जो है वो खत्म हो गए। देखो, ऑल इविल शेड अवे, सब इविल्स खत्म हो गए, वो एक पल्स बन गया एटर्नल माइंड में। तो अब वो ही इज एबल टू नो लेस, नो लेस मतलब वो किसी भी तरह से कम नहीं है। वो वो सारे थॉट्स वापस देने वाले पोजीशन में है जो इंग्लैंड ने उसको दिए, उसकी साइट से, साउंड से, ड्रीम से, लाफ्टर से, मतलब जो भी हंसी मजाक से, जो भी अच्छे दिन, अच्छा समय जो उसने स्पेंड किया दुनिया में, उस सब से, फ्रेंड से, है ना, जो कुछ भी उसने सीखा वो सब वो लोगों को कन्वे कर सकता है और लोगों को इस बात के लिए बता सकता है, कन्विंस कर सकता है कि उसका देश जो है वो एक हेवन ही है ना। So what the point is, what I want to highlight is that the poet feels that his death or his sacrifice for his country is a sort of redemption, है ना, because he has become a pulse in the eternal mind. He says that his only life, only sacrificing life, only life will be the appropriate thing to give a tribute, to give to great motherland in return for all the beautiful and great things that she has given him. क्या पोइट कह रहा? पोइट कह रहा अपने देश की मिट्टी के लिए शहीद होना ही एक सबसे बड़ा जो है तरीका है कि वो अपनी मातृभूमि को वो सब कुछ लौटा सके जो सब कुछ खूबसूरत और अच्छी और महान चीजें उसको उसके देश की मिट्टी ने दी। उसके देश ने अच्छा, अब हम दोबारा एक बार फिर से रिपीट करते हैं इन्हीं शब्दों को, इन्हीं वर्ड्स को, कि उसके देश ने जो भी उसको अच्छी और महान चीजें सिखाई उन सब का बदला चुकाना कैसे हो सकता है? कि अपने उस देश की ही रक्षा करते करते शहीद हो जाना। That's what he concludes in the last stanza of this poem. So this is what is there all about in this poem, and it was so simple, and the poem is just a tribute of a soldier for his country. I hope you understand the poem. Thank you.